बस पता ही नहीं क्या होगा जी। मैं मतलब 3-4 दिन में है ना, काम पता नहीं बिगड़ गया या ठीक हुआ, मेरे को नहीं पता। लेकिन जब बात बच्चों पे आ जाए तो फिर उसके आगे क्या चाहिए आदमी ने, खत्म है सारा सूत्र। और जो कह सके वो कुछ भी कर सके। मैं उसको पकड़ने भी मैं वहाँ यहाँ उस टाइम थे 60-70 बंदे, अगर मैं उसको पकड़ूँ कुछ करूँ तो वो उसके मन जानता मार देंगे। ऐसे ही होता है, हालात ऐसे बन जाते हैं। हालात ऐसे बन जाए। मगर भाई करने वाला तो पता नहीं कौन होगा, अभी इसका मारे थे कौन से मेरे बच्चे सेफ हैं। मगर मैं तो जिक्र मतलब सुन हो गया मेरा एक बार, तो मैं ये नहीं समझ आया क्या। हाँ, समझ नहीं आती भी आदमी करे तो क्या करे। क्या कैसे करूं? आदमी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। कैमरे अपने इसके अलावा भी और कोई कारोबार है? इतना ही है जी, जो 7 महीने से किसानों के पास ही है। वो भी हो गया। हाँ हाँ, वही गोल्डन वही मेन तो वही है ना। मैं इसका तो पता ही परसों लगाया है कि हमने कोई ऐड नहीं करनी थी। यहाँ तो निस्वार्थ खड़े हैं, पहले दिन से खड़े हैं। अगर मैंने कोई ऐड करनी होती, मेरी 100 वीडियो हैं, 2-4 यहाँ की भी बनवा देता। अगर होटल फेमस करना, 99% आदमियों को पता ही नहीं था किसका कहाँ है। लेकिन जब यह हादसा हुआ तो वीडियो वायरल होगी तो आपके सामने ही है सारी पिक्चर। रंजिश वो भी इन्होंने भाई साहब की मतलब मेहरबानी ला लो या जैसे भी इन्होंने 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 21 तारीख के ਆਪਾਂ पेपर ਹੋ में ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਅ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਸੀ। 21 तारीख को पेपर में सारे पेपरों में ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਰਾਣਾ ਜੀ पेज पर आ गया। ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ गोल्डन ਆ हट ਗਿਆ। वाले ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब 5-7 ही घंटे पीछे हो गया था। अभी तक काफी वायरल हुई ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ सम्मानित ਕੀਤਾ ਜਾएगा। सारे वीडियो 22 को डली है। नहीं वो सम्मानित करते कर सम्मानित पता हमें करते- पता हाँ चला। पता तो लग गया था ना। हाँ हाँ वो इसका भी पता लग गया, इसका भी उसी दिन पता लगा मेरे ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। को। आपका है उधर ही पता लगा। नहीं फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਪਰਚੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ पानी ਆਪ की बोतल नहीं आई। ਪੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੁਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੱਟ ਲਓ, ਉਹ ਢਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰ 2 ਨਾਲ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ। 2 ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। 10-12 ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਰਸਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫਟੀ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ मतलब समझ ही नहीं आ रहा। मतलब ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਖੜੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਨ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ ਹਾਂ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਆ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ सारे ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ना तो कोई बिजनेसमैन के बेटे हैं, जीरो से हीरो हुए हैं, मतलब आज हीरो बन गए। दुख भी है और खुशी भी है। दुख ये है कि भाई दुश्मन ज्यादा बन गए, दुश्मनों से ज्यादा प्यारे हैं, मेरे को भी पता है, लेकिन सिस्टम सारा है वो खड़ा ये तो राणा जी कुदरत का कोई सिस्टम ही है। जो भी अच्छा काम करेगा उससे दुश्मन काम करने बढ़ेगा वाले के दुश्मन ज्यादा होते हैं। उसके दुश्मन बढ़ेंगे है जी। यहाँ तो इतनी नफरत है, मतलब ये आज तक मेरी वोटर आईडी नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, कुछ क्या करे, आज तक नहीं है। ये तो कल वो वीडियो उनने भी डाली है, तो मतलब है ही नहीं कोई सिस्टम। तो लेकिन एक राजनीति शो बना रहे हैं, किसी का मैसेज आ रहा है कि तो अमरिंदर साहब के साथ डिनर पे गए और हमारे पास फोटो है यार, मैं दिखा तो दे, मैं तो यार ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ तो ਅਮਰਿੰਦਰ वही ਕਦੀ मेरे लिए ਵੇਖਿਆ बहुत बड़ी बात। मतलब सारी तरह की पता नहीं है कौन क्या कर रहा है, पता नहीं कैसी कैसी, लेकिन राजनीतिक रंग दिए जा रहे हैं सर हाँ मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। कि मतलब यहाँ तो कि ना तो कभी ये सोचा था कि भाई इतना सेवा का ये फल मिलेगा, सब कुछ खो के भी आज मतलब बहुत कुछ पाया है प्यार के रूप में, लेकिन अब हैं हाँ वो भी दुश्मन ऐसी जब बात बच्चों की आ जाए ना, कितना बड़ा वो तो है जी, आपको। शूरवीर हो, भला भला वो कहता है भाई मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए बच्चे बच्चे सब चाहिए और कुछ नहीं है, बाकी तो सब बात की लड़ाई है। सुख बड़ी चीज है। ਮੈਂ ਪਿਛਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ होता क्या है, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ विश्वास ही नहीं होता किसी ਜਿਸ को, ਆਦਮੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ विश्वास ही नहीं बन रहा, कहीं भी नहीं बन रहा। सिर्फ यहाँ बन रहा है कि भाई अगर सेफ रह सके ना, तो जहाँ पंजाबियों के घर के बीच में तो क्यों हर आदमी मेरे को मान दे रहा है, मेरे को दिल से है जुड़ा, तो कम से कम वो वहाँ सेफ तो रह जाए, तो रह जाए ना। किसी होटल में सेफ दिख रहे मैं सारे होटल जानकार है, जिसमें तो 1 मिनट का पहले कोई बातें नहीं है। और ये न्यू नहीं है कि भाई 2 दिन का 4 दिन का, क्या मानिए 6 महीने का राडा है, क्या क्या हो जाए क्या ना हो जाए, तो जैसे आपको बेस्ट लगे ना, बेशक कोई मतलब कर खा भी आप लेंगे सारे, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬ कोई ना कोई एक ही कमरा मिल जाए उसमें, मतलब सेफ हो जाए, ਇਹ क्या ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਕੋ ਪੂਰਾ बच्चे सेफ हों, महाराज सब कमाल सेफ की बात है, हैं, कुछ नहीं चाहिए। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ मैं मतलब समझ ही नहीं पा रहा, ना सोच पा रहा भाई क्या तो इसमें करें क्या ना करें। राणा जी मेरा आपको ये सुझाव है फिर एक बार तो अपने आप बच्चों को हमारे साथ भेजो दीजिए आराम से 2-4 दिन पहले आप भी शांत हो वो भी अपना सेफ मतलब वक्त में रहे पहले तो नहीं मेरा ख्याल तो यही है जी। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ भाई आप एक बार तो अपना बोझ उतार के 2-4 दिन के लिए पहले तो अपना 2 तारीख तक का माहौल देखते हैं ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ सारे हमारी जिम्मेवारी है हम अपने साथ लेके जाएंगे आपको छोड़ो हमारी कर दे रहे कोई दिक्कत नहीं है पहले तो आप अपने 2 तारीख तक का तो पहले अपना बोझ उतार के ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल जो जी गरमी जी ठीक है हैं ठीक है ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ
ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤਗੜਾ ਕਰ ਲੋ। हाँ कोई मैं तगड़े चटान कर लो, साढ़े रोज बीतियां ने। इस दलदल से निकाल दो, मैं तो मतलब ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ कसम से पछता रहा हूँ मैं। राणा जी मैं आपको बताऊं एक बात, ये बात को यार विस्तार मैं तो सेवा करने के लिए जुड़ा था। मैं आपको बताता हूं, जब ये 26 जनवरी का वाक्य हुआ ना, 26 जनवरी का वाक्य होया ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਔਰ ਓਪਨ ਚ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਗਾਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। पर ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬਿੰਤੀ ਸੁਣ तो लो। बहुत बड़ा चेहरा हो, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। राणा जी मेरी बिंती सुन तो लो। हम एक बात जानते हैं कि देखो हमने लड़ाई को अपनी निजी नहीं है, ये हम हमारी कम्युनिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो कोई बात नहीं। अगर कोई बात है तो हमारी कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है, तो इसी तरह हम आपके साथ भी खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमारा हिस्सा नहीं है, आप भी हमारा हिस्सा है, आप भी हमारा हिस्सा है। आपका परिवार हमारा परिवार है। हम तो आपको बड़े बाजार में जिम्मेवारी लेते हैं कि आपके परिवार पे कोई कुछ नहीं कर सकता। हम अपनी जान दे देंगे, परिवार को कुछ नहीं देते, हम जिम्मेवारी लेते हैं इस बात की। हम जिम्मेवारी लेते हैं, अपना खून का कतरा कतरा बहाने वाले लोग हैं। कैसे को कर लेगा हमारे बेटे को, क्या क्या बात कर, जरूरत भी नहीं किसी की सोचे इतनी बात। मैं आपको बता रहा हूँ राणा जी, जरूरत भी नहीं किसी की इतनी को सोचे। कमाल है जी। हम तो दुनिया में वो लोग हैं जो शहीद भगत सिंह जैसे लोग दुनिया इंग्लैंड में जाके लोगों को ढूंढ लाते हैं, भी तू कहाँ बैठा हुआ है। और ऐसे किसी की क्या पूरे देश में जरूरत है? पूरे देश में किसी की हिम्मत नहीं है, पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं। उनको पता है भी तो किसी भी दुनिया में छुपने को जगह नहीं मिलेगी। जमीन में घुस जाएगा, जमीन में से निकाल लाएंगे, आसमान में आसमान में से खींच लाएंगे। तो ऐसी किसी की क्या जरूरत है? अपने है ही नहीं। तो आप बिल्कुल एक तो ये भूल जाओ कि मेरे को अफसोस है, बातें छोड़ दो, आप भूल जाओ। आप तो एक बात कहो कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, बारी तुम्हारी है। बस एक ही बात को, भाई मेरा परिवार तुम्हारा परिवार है। जब तुम्हें जरूरत थी मैंने अपना परिवार तुम्हें समझा, आज मुझे जरूरत है तो मेरे परिवार को तुम अपना परिवार समझो। बात तो इतनी है, और वो हम कह रहे बिल्कुल है और डट के खड़े। कि आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि मैं अकेला हूँ, अब आप अकेले नहीं है आप, आपके साथ आके बैठ गए। ना 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 ना, हम नहीं। फादर साहब खड़े हैं, अच्छा अच्छा, चौधरी साहब आओ जी, आओ, नमस्कार जी, आ जाओ आ जाओ। इन तक को नहीं पता, अब पता लगेगा इनको भी। मैंने 10 मिनट पे 15-20 मिनट चौधरी साहब घबराना नहीं है। मैंने इनको कहा कि आपने हमारा परिवार अपना परिवार समझ के हमारी सेवा की, और अब हमारी बारी है, हम भी आपको अपना परिवार समझ के खड़े हैं। आप हमारा परिवार हैं, हाँ परिवार है आप हमारा। तो हमारे परिवार की तरफ आंख उठा के भी कैसे देख सकते हैं? देखियो, आज हम राम सिंह राणा जी के गोल्डन हट पे आए हैं। इन्होंने जो पिछले दिनों में इनकी एक सम्मान समारोह की फोटो और वीडियो वायरल हुई, जिसमें किसान जथेबंदियों द्वारा इनका सम्मान किया गया, जो इन्होंने लंबे समय से अपना पूरे का पूरा व्यापार बंद करके, वो गोल्डन हट जहां से वाकई गोल्डन हट थी, जहां से इनके आमदन के स्रोत था, घर चलता था, उसको बंद करके किसानों को दे दिया रहने के लिए। जब ये बात समझ में आई कि ये भी होटल इनका है, उसी गोल्डन हट का है जो कि कुंडली बॉर्डर पे है, तो उसके चलते इसके बाहर बैरिगेटिंग करके इंतजाम कर दिया गया, जो कि बड़े लंबे समय से मानसिकता रही है पहले भी, कि जब भी किसी से विरोध किसी का करना कोई करे, उसको दबाने का क्या रास्ता, उसके आगे का रास्ता खोद दो। जैसे आ रहे थे तो सड़कें खोद दी, अब बैरिकेड लगा दिए कि अंदर ना घुस पाए, बाहरी तौर पर आर्थिक तौर पर इनको मारा जाए और इनको सबक सिखाया जाए। और अब पूरा देश और दुनिया इस बात को देख रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, हमें भी दुनिया भर से फोन आए कि इनके साथ अपनी तरफ से तो आप जाओ, दिल्ली कमेटी की तरफ से। मैं आज दिल्ली कमेटी की तरफ से यहाँ पे अकेला नहीं आया, बल्कि जो दुनिया भर के लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, दुनिया भर के लोगों की तरफ से हम रिप्रेजेंट करके राणा जी के पास आए हैं। राम सिंह राणा जी को यह भी आश्वासन दिया, हम डट के तुम्हारे साथ खड़े हैं। और कल से जिस तरीके से इनके परिवार को भी धमकी देनी शुरू कर दी कि तू ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, तेरे बच्चे हैं, बच्चे संभाल ले, ये बहुत ही, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। मैं डीजीपी साहब से भी अभी बात करने की कोशिश की, वो मीटिंग में थे। मैं यहाँ के प्रशासन से भी, वहाँ के डीजीपी साहब से भी आग्रह करेंगे, इनको पूर्ण तौर पर सुरक्षा दी जाए। और इनके परिवार की हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमने राम सिंह राणा जी को
और आपके टीवी चैनल के माध्यम पर बोल रहे हैं, इनके परिवार की हमारी जिम्मेवारी है। हमारा कतरा कतरा खून का बह सकता है, लेकिन इनके परिवार को आंच नहीं आने देंगे। ये हमारी इनके साथ है, वचनबद्धता है। धमकी किसने दी है? शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं पुलिस में? बिल्कुल शिकायत भी दर्ज कराएंगे। उन लोग एक्सपोज हो, कौन इसके पीछे है, कौन ये सब कुछ कर रहा है। हम इसकी जांच सुरक्षा की मांग करेंगे, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसकी भी हम मांग करेंगे। पर हमें इस बात का बड़ा दुख है, इतना बड़ा विषय बना हुआ है, प्रशासन को इसका निपटारा अब तक कर देना चाहिए था। लेकिन हम भी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने 2 तारीख तक का समय दिया है, तो हम 2 तारीख तक हम भी किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो बड़ी संस्था है, उन लोगों ने जिम्मेवारी से काम लिया। लेकिन 2 तारीख के बाद अगर सरकार इस लाइन को इसको आगे नहीं निपटारा करती, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे अपने तरीके से इसका निपटारा करने से। पर हम नहीं चाहते, सरकार को ऐसी विरोधता नहीं करनी चाहिए, ऐसा द्वेष मन में नहीं रखना चाहिए। हर एक को किसी का साथ देने का अधिकार है, और ये यहां नहीं हो रहा खाली। आपने देखा होगा, ये प्रचलन अब हरियाणा में शुरू हो गया है। भाई मार, जिसको कहते हैं भाई मार जंग शुरू कर दी गई है। अपने तरफ पैरेलल लोग खड़े किए जा रहे हैं सामने, जो कह रहे हैं जी हम यहाँ पे प्रदर्शन किसानों का नहीं होने देंगे, हम यहाँ प्रदर्शन मुख्यमंत्री का कराएंगे। ये जानबूझकर सरकार एक भाई मारू जंग खड़ी कर रही है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, इस रास्ते मत चलो, काले कानून रद्द हो, उनको रोकने के लिए ये जो आपकी चालें हैं ये नाकाम होंगी। ऐसे काम मत करो। राणा जी, धमकी आपको आई है तो कहाँ से धमकी आई है, क्या कहेंगे, कौन परेशान करेंगे? अच्छा भाई जी, वो बातें सारी आएंगी, लेकिन फिलहाल वो मीडिया के सामने। देखो, वो कुछ बातें अभी ऐसा है, संक्षेप में आपको बता देते हैं कि यहीं पर आकर धमकी दी गई है। फोन पे बात कराई गई किसी से, जो कि आमतौर पर हम बात करते करते बातचीत कर लेते हैं, भी कौन है आगे सुन लेते हैं आगे, और आगे वाला आदमी फोन पे धमकियां दे रहा है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही एक गंभीर विषय है, और इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने अंदर बैठ के अब यही बैठक की कि परिवार की सुरक्षा के लिए भी पुलिस को इसकी जानकारी देंगे, पुलिस प्रबंध लगे यहाँ पे, और जो लोग इसके पीछे हैं उन लोगों को, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। राणा जी, इससे केवल आपके ढाबे को टारगेट किया गया, क्षेत्र में एकमात्र ढाबा यही है जहाँ पे टारगेट किया गया, तो अब हफ्ता हो चुके से बात करो, क्या होता है? ऐसे है जी, हफ्ता क्या है, तो जब 7 महीने हुए, हम जब से आंदोलन शुरू हुआ है, पहले दिन से अपने किसान भाइयों के, अपने पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, और जो हमारी हर चीज़ से हम हेल्प कर रहे हैं। हमें डर था, पहले दिन भी डर था कि भाई हम ये काम तो कर लिया, हम खड़े तो होंगे, लेकिन हमें गवर्नमेंट परेशान करेगी। लेकिन हमें ये नहीं अंदाजा था, हमें आभास भी नहीं था मन में भाई ये इतनी नीचता तक आ जाएंगे कि भाई ऐसा काम भी हो सकता है। अब जब पहले आटे की सेवा लंगर की सेवा चल रही थी, फिर आटा, दूध, पानी, तो मतलब एक पूरी की पूरी जो वहाँ जितने भाई बैठे हैं, ताकि वो किसी भी बेसिक जरूरत से परेशान ना हो, उसकी जिम्मेवारी मैंने अपने दम पे लेके, लेने और देने वाला परमात्मा है। मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, क्षण मात्र भी नहीं हूँ। मैं तो करवाता भी वो खुद है, करता भी खुद है, लेकिन वो किसी को माध्यम बनाता है। चलो, मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि भी शायद ये कर पाए। तो जैसे जैसे वो बड़ी पहले दिन से आने शुरू हो गए थे, मतलब हफ्ते 10 दिन बाद से, भैया आप क्या खड़े हुए हो, धंधा करना है। अब धीरे धीरे जैसे सेवा, अब हमने एक ही बात बोली हुई थी, और अब भी वही है, वहीं खड़े हैं अपनी बात पे कि भी आंदोलन चाहे 7 महीने हो गए, अब तो चाहे 7 साल भी चले, और उसके भी एक हफ्ता बाद मिलेगा राणा जी, और आंदोलन की सेवा ऐसी। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जब ये लगा कि भाई ये तो पीछे नहीं हटेगा, नोटिस दे के भी डराना धमकाना तो पहले भी चलता रहा, लेकिन पहले डराई धमकाई चल रही थी खाली धंधे के ऊपर। तो जब 4 दिन पहले मैं भाई साहब जी ने सम्मानित किया यहाँ गुरुद्वारे में, यहाँ काफ़ी भाई थे अपने, शिक्षक काफ़ी थी, और भी भाई थे अपने। तो जब इन्होंने सम्मानित किया, तो मंडे को, सोमवार वाले दिन 21 तारीख को, कुरुक्षेत्रा जो न्यूज़पेपर है उस पर फ्रंट पेज पे, लगभग सभी पेज पे ऐड रही है। तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन को या तो पहले आभास नहीं था कि भाई ये गोल्डन हट उन्हीं का है, या वो मतलब इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए। तो उन्होंने मतलब कुल 5-6 घंटे के बाद जेसीबी भेजी हैं, 2-3 ट्रक आए हैं भर के, 2-3 मशीनें आई हैं जो उठा के लगा के गई हैं इनको। तो लगभग ये 3-4 फुट ऊंची बैरिकेडिंग करके, ताकि कोई भी आदमी होटल के अंदर एंट्री ना कर पाए। तो ये तो चलो जो था वो वहाँ तक तो कोई बिजनेस है, आदमी कर लेता है, लेकिन मैं पूरे
सभी भाइयों का, पूरे किसान परिवार का, अपना जो हमारा किसान परिवार हमारे साथ खड़ा है, और जो अमरिंदर भाई जी ने जो जिम्मेवारी ली है, सरसा जी ने, जो बच्चे आज से मेरे बच्चे इनके पास रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कम से कम जब तक ये माहौल ठीक होए मैं निश्चिंत हो गया। अपना जो कर रहे हैं अब गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमें कोई आभास नहीं है इस चीज़ का। क्या पता शाम तक मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे तो मेरी ज़िंदगी सेफ है, मेरा सब कुछ सेफ है। तो मैं आभारी हूँ पूरी सिख कौम का। मैं बस, मेरे पास शब्द नहीं है। इनके बच्चे परिवार जो है वो हमारे पास, हम अपने पास रखेंगे। हमने इनको आश्वासन दिया है और हम फिर आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी और दुनिया भर कोई लोगों को ये बताना चाहते हैं। इस बात का हमने इनको आश्वासन दिया, हमारा खून का कतरा सकता, लेकिन आपका परिवार हमारा परिवार है। आपके परिवार की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। खाली संभालने की नहीं, कोई आंख उठा के नहीं देखे, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इसलिए आज हम अपना, इनका परिवार हमारे साथ रहेगा। सरदार हरमीत सिंह जी कालका जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के, वो भी आपसे 2 मिनट बताएंगे। पार्टी की तरफ से भी हमारा आश्वासन है, हमारी पार्टी भी डट के खड़ी है। श्रोमणी अकाली दल से आप क्या कहना चाहेंगे जो नाजायज हो रहा है? देखो, जो बात आपको भी बताई कि जिस तरीके से इनको सम्मानित करने के बाद ये बात हुई, और सम्मानित भी श्रोमणी अकाली दल ने इनको किया। वहाँ पर हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर बैठे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी लगा दी है कि अपने लोगों के साथ रह के राणा जी का यहाँ सहयोग करना है। और ये जिम्मेवारी कि उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए हम उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं। और इस बात के लिए सरकार के ऊपर भी बात करेंगे कि ऐसी ही तशद्दुद जो है व्यापारियों के ऊपर ना की जाए। किसान तो तुम्हारे खिलाफ है ही, अब व्यापारियों को भी तुम खिलाफ कर रहे हो, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारी अपनी तानाशाही चल रही है इस देश के अंदर। सो इसको दूर करने के लिए जो सहयोग राणा जी करेंगे, क्योंकि इन्होंने जितना बड़ा सहयोग दिया है वो शायद ही कोई व्यापारी कर सकता है। ये व्यापारी की सहयोग नहीं था, ये किसान के बेटे का सहयोग था, ये एक उस आदमी का सहयोग था जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, और जमीन के साथ जुड़ा हुआ लोग आज सारे राणा जी के साथ। श्रोमणी अकाली दल सुरक्षा देगी परिवार को, बच्चों को? बिल्कुल, हम उनको साथ लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ के लोकल बंदे हैं वो इनके साथ राणा जी के साथ यहीं रुके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 골ਡਨ ਹੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ 골ਡਨ ਹੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਸਾਰੇ। ये निपटने के बाद आए जी, अब भी आते हैं, लेकिन बड़ी ਸਾਰੇ दिक्कत आती है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਅਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਰ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ 7 ਭਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਫਰਾਂਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਹਾਲੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ सुनते पे हैं। भाई जी, मैं शब्द ही नहीं है, मैं कैसे धन्यवाद करूं भाई साहब के। बस पूरे किसान समाज का
पूरे अपने भाईचारे का, पूरे सिख समाज का मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी जो मेरे को कल से हो रही थी, और वो मैं शायद मैं निश्चिंत रहूंगा उस बात से, और बस मैं शब्द नहीं है मैं अभी। ਬਸ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਂਦੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲੇ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਔਰ ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਇੱਥੇ। ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਟ ਕੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਊ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।